Hello students, welcome back to my YouTube channel. In today's video, we'll starting with the class 9 maths chapter 4 linear equations in two variables. This is the topic for today's class. Clear? Before this, we have done chapter 1, chapter 2 and chapter 3 coordinate geometry of 9th class. Now we are going to start with the chapter 4. Clear? In this topic, linear equation in two variables, in this chapter, we have to study two things first. One is meaning of the chapter. कि meaning क्या है, हमारे जो chapter दिया है, जो नाम दिया हुआ है, what is the name, जो भी name है, what do you mean by that. पहले तो आपको meaning समझ में आना चाहिए चीजों का, ठीक है. उसके बाद we have to study the general form. कि general form होती क्या है, how to write any equation in linear equation in two variables. अगर one में दिया है तो how to convert in two variables and all those values, all those things, ठीक है. उसके अलावा बाद में हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आएंगे. बट स्टार्टिंग विद द, इफ यू आर स्टार्टिंग विद द 4.1 एक्सरसाइज, यू नीड टू अंडरस्टैंड ओनली टू थिंग्स. वन इज व्हाट डू यू मीन बाय द मीनिंग, व्हाट डू यू मीन बाय द linear equation in two variables, and second is what is the general form of this linear equation given in your NCERT class 9 maths chapter 4 linear equations in two variables. Now start one by one. अगर हम मीनिंग की बात करें, सबसे पहले देखो, मैं सबसे पहले आपको मीनिंग समझा देती हूँ इसका, देन वी गो टू द जनरल फॉर्म एंड ऑल. इफ यू गो टू द मीनिंग, कि मीनिंग क्या है हमारे चैप्टर का, व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स. हमारा जो चैप्टर का नाम है दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है. हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म्स है मेरे पास. इन 4 टर्म्स का हम एक एक करके मीनिंग समझते हैं, ठीक है. अब अगर इसकी बात करूं, 2 का मतलब आपको समझ में आता है, 2 इज नथिंग बट 2, जहाँ पे दो चीजें होती हैं, 1 और 2, दो चीजें होनी चाहिए मेरे पास, ठीक है. तो 2 तो पता है, ठीक है. मैंने आपको लास्ट क्लास में जब मैंने आपको एक्सप्रेशंस इक्वेशन समझाया था, तभी मैंने आपको पॉलिनोमियल्स का चैप्टर, जब मैंने सेकंड चैप्टर आपको बताया था, आई clearly mention what do you mean by equation, what do you mean by variable, what do you mean by constant expression, everything I cleared very thoroughly with you. अगर कोई डाउट है, you go to the description box या मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए वीडियोस की, आपको वहाँ पे सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल का आपको लिंक मिल जाएगा. You can see the complete video and after that you can come on this video. Clear? Now start. What do you mean by equation? Equation में था कि any expression with the equality sign. अगर equality sign नहीं होता, then it is an expression. But if you add one equality sign and something on the left and right hand side, then it becomes an equation. Like for example, x plus 2 is an expression. This is an expression. But if I put here 0 equal to 0, now it has become an equation. Clear? लीनियर और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में मैंने आपको बताया था व्हाट डू बी लीनियर, व्हाट डू मीन बाय क्वाड्रेटिक, व्हाट डू मीन बाय क्यूबिक. क्लियर है? ये भी मैंने आपको अच्छे से समझाया था. अब लीनियर क्या होता है? लीनियर इज नथिंग बट व्हाट, हुज हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1. अगर जो भी वेरिएबल आपको दिया हुआ है एंड द हाईएस्ट डिग्री इज 1, दैट इज कॉल्ड योर लीनियर इक्वेशन एंड इट हैज. और दूसरी बात थी कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ एनी लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक और एनी पॉलिनोमियल है, तो जितने डिग्री उतने आपके सॉल्यूशंस. क्लियर? सो इफ वी हैव हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 1, that means to we can say that it is going to have only one solution. Clear? So this is the meaning of linear, whose highest degree of the variable is 1. The equation means this thing, 2 means this. And what do you mean by variable? Variable constant also I have clearly mentioned with you. What do you mean by variables? Whose values are not fixed. Means whose values vary from one numerical value to the other numerical value. Means whatever value we give to the variable, that becomes the value of that variable. Clear? So whose values are not fixed. Suppose if I put x equals to 3, so the value becomes x equals to 3. So और representation कैसे करते हैं? Representation करते हैं हम x, y, z, w, t, anything we can have.
So all the small alphabets are being represented for the notation of variables. तो वेरिएबल्स को हम कोई भी x, y, z आप कोई भी आप ले सकते हो. क्लियर है? सो जैसे x मैंने ले लिया, x इक्वल्स टू 3 है तो वैल्यू बिकम्स 3. x इक्वल्स टू -5 लिया तो वैल्यू कितनी बन गई? -5. इस तरीके से. So this is the meaning first of all linear equation in two variable linear equation in means in आपको पता है what it mean by that. 2 is 2 and variables are x, y, z. तो इसका मतलब क्या हुआ? We are talking what about of things here. For example, अगर मैं अब आपको इस चैप्टर का मीनिंग मैंने I have clearly mentioned you. Now अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं that give me example of linear equation in two variables. What kind of example now we can frame with it? कैसे होगा? पहले तो देखो इक्वेशन हमारे 2 वेरिएबल्स में होना चाहिए. क्या कितने वेरिएबल होने चाहिए? 2 वेरिएबल होने चाहिए मेरे पास. आई एम हियर टेकिंग एक वेरिएबल x और एक वेरिएबल y. ठीक है, मैंने 2 वेरिएबल ले लिए, वन इज x एंड वन इज y. नाउ लीनियर इक्वेशन होना चाहिए. दैट मीन्स टू से आई हैव टू पुट समथिंग इक्वालिटी एंड लेट्स सपोज इक्वल टू 4. ठीक है, बट in this we have what? Do we have any sign? No. So we can put any of the mathematical operation. We have 4 mathematical operations, basic operations, plus, minus, multiply and division. So if I put this now, see, and the highest degree is also what? 1 because I have not written anything. So highest degree is also 1. So x y. अगर मैं देखूं इसका क्या ये मेरे मीनिंग को जस्टिफाई करता है एग्जाम्पल जो मैंने फ्रेम किया है? यस एग्जैक्टली. हाउ? लीनियर जो वेरिएबल्स हैं उनकी डिग्री कितनी है? हाईएस्ट डिग्री इज 1 के अलावा तो कुछ नहीं है. तो ये बात तो हो गई सेटिस्फाइड. इक्वेशन की बात करें तो इक्वालिटी साइन भी है, दिस इज आल्सो सेटिस्फाइड. 2 वेरिएबल्स मतलब 2 वेरिएबल होने चाहिए, एक x है एक y है, दिस इज आल्सो सेटिस्फाइड. एंड द वेरिएबल्स x एंड y, सो वी आर डन. सो दिस इज द एग्जांपल वी हैव फॉर दिस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्लियरली मेंशन्ड. ठीक है, एक और एग्जांपल हम बना लेते हैं. लेट्स सपोज 2x minus 4y is equals to 8. You can clearly see इक्वेशन भी है, 2 वेरिएबल भी है और सबसे बड़ी बात लीनियर भी है. हाउ? बिकॉज हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 1. दोनों का 1 होना चाहिए. अगर मैं सपोज आपको एग्जांपल दे दूं x² plus 5 is equals to plus y is equals to 5. See, this is equation. This is in 2 variable also, but is it linear? No. Highest degree of y तो 1 है, we have 1, but the highest degree of x is not 1. So this is not an example of linear equation in 2 variables. Clear? So this is the meaning that what we mean by the meaning of the chapter and how can you frame the examples. अगर आपसे क्वेश्चन में 1 मार्कर पूछ लेता है, give 2 examples of linear equations in 2 variables, so you can frame any of the example. क्लियर है? ये एग्जाम्पल मैंने फ्रेम किया है. अब आते हैं इसकी जनरल फॉर्म पे. व्हाट डू मीन बाय जनरल फॉर्म? कि जनरल फॉर्म होती क्या है हमारे पास? I'm not rubbing this example because we'll see why I'm not rubbing this example. यहाँ पे लिख लेते हैं 2x minus 4y is equals to 8 and the first one was x plus y is equals to 4. ये दोनों एग्जाम्पल मैंने आपके फ्रेम किए थे. इन्हीं से हम इसकी जनरल फॉर्म बनाएंगे. You just see here कि जनरल फॉर्म होती क्या है. ठीक है, जनरल फॉर्म बोल दो या फिर यू कैन से द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑल्सो. क्लियर? अब यहाँ पे अगर देखें तो 2 वेरिएबल होने चाहिए, मीन्स x और y 2 वेरिएबल तो होने चाहिए, इक्वालिटी भी होनी चाहिए. ठीक है, बाकी अगर हम देखें दिस 2 इज कांस्टेंट और वी कैन से दिस इज कांस्टेंट बट और वी कैन से दिस इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ x. Likewise, this is -4 is a constant or we can say this is the coefficient of y and this is also constant. ठीक है, तो इक्वल टू में सम कांस्टेंट हम लिख देते हैं. तो क्या होना चाहिए? दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है, अब तो ये किस तरह का फॉर्म हो गया और यहाँ पे इनके साथ क्या है? कांस्टेंट्स है. तो ए के साथ भी मैं एक कांस्टेंट लगा देती हूँ और बी के साथ भी मैं एक कांस्टेंट लगा देती हूँ. इन बिटवीन विल पुट द
प्लस साइन माइनस माइनस वो सब अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो ये हो गई एक इस तरह की फॉर्म मेरे पास बन के आती है। बट इसको कैन आई राइट 2x माइनस 4, इसको अगर शिफ्ट करूं प्लस का इट विल बिकम माइनस इक्वल टू 0। ये बन गई। अब देखो सारी, अब बार बार आप बोलोगे कि इक्वालिटी में तो कुछ भी आ सकता है। अगर इसकी अब बात करें, इक्वालिटी में हमेशा 0 आना चाहिए। इसी तरीके से कैन आई राइट दिस x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। अब मुझे बार बार राइट हैंड साइड पे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी दैट व्हाट शुड आई पुट इक्वल टू on the right hand side. It will always be 0. So likewise this will also become x plus y. इधर लाओगे तो although it's माइनस बन जाएगा बट वी आर जस्ट पुटिंग माइनस साइन ऐसे है, तो मैं प्लस माइनस नहीं रख रही। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है दैट इज ax प्लस by प्लस इसको मैं क्या लेती हूँ, आई एम रिप्लेसिंग दिस विथ कांस्टेंट c ओनली इक्वल टू 0. So this is nothing but the standard form of the linear equation in two variables ax plus by plus c equal to 0. ये मत समझना ये नहीं है, ये नहीं है, ये सिर्फ मैंने इसको डिराइव करने के लिए इसको राइट डाउन लिखा है। ठीक है, अब देखते हैं एग्जांपल की बात। सपोज आई सेट 4x plus 8y is equals to 6. ठीक है, एंड आई गिव यू क्वेश्चन, राइट in standard form, write down in standard form and find values of a, b and c. अब आप देख सकते हो a is always the coefficient of x, b is the always the coefficient of y and c is nothing but the constant which is allowed. उसके साथ कुछ x y नहीं होता। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगी, सबसे पहले जो भी राइट साइड में चीजें उनको लेफ्ट में ले आओ। राइट में इट शुड बी ऑलवेज 0, सो इट विल बी 4x प्लस 8y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब मैं निकालूंगी अपनी, ये होगी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम निकालेंगे अपनी वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। तो a की वैल्यू क्या हो गई, विच इज ऑलवेज विद x, वेरिएबल x। तो कितना है ये 4 है, तो इट विल बी 4। b के साथ कितना है 8, अब प्लस माइनस का जरूर ध्यान रखना, तो इट विल बी 8। ठीक है, और c कितना है, इट विल बी द कंप्लीट c, सो दिस इज माइनस 6। ठीक है, सो दिस इज जनरल फॉर्म। ये होती है जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। क्यों है ये भी मान सकते हैं, बट वो मीनिंग वो रहता है बार बार कि कांस्टेंट क्या करना है क्या नहीं करना है। सो इसलिए राइट हैंड साइड पे ऑलवेज पुट इट 0 and shift all the things on the left hand side. So ax plus by plus c equal to 0 is your linear equation in two variables. दो वेरिएबल x और y, बीच में ऑपरेशन भी है, इक्वालिटी भी है और डिग्री भी 1 है। So this is the perfect example and the general and the standard form of the linear equation in two variables. Clear? So if you like this, please subscribe the channel and comment your suggestions, your queries, anything it can be. Like the video and share it with your friends. इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 4.1। क्लियर है? सो दिस इज द थिंग, जस्ट पहले मीनिंग समझिए, इसका समझ में, ये मीनिंग समझ में आना चाहिए, जनरल फॉर्म समझ में आनी चाहिए। आफ्टर दैट यू गो टू एक्सरसाइज 4.1 which is very simple, only 2 questions are given and that is very easy to do. Clear? So thank you so much for this. In the next video we are starting with the exercise 4.1. We are making only the small topics, small videos, so that you can easily understand the things. ठीक है? Thank you so much and keep practicing.